Good, good evening, ladies and gentlemen. I, Maika Govil, on behalf of Her World India, would like to welcome you all to the talk show series in conversation with the power girl, Priyanka Goswami. I'm so excited to introduce Priyanka Goswami, a 24-year-old from UP who recently created a national record in women's 20-kilometer race walking and is now prepping for the Tokyo Olympics. In February 2021, she won in the Open Indian Championship in the 20-kilometer race with a new Indian record of 1 minute 28.45 seconds and qualified for the 2020 Summer Olympics. She previously won the national championship in 2017. An athlete and a woman who symbolizes strength and power. We're delighted to have you with us today, ma'am. Welcome. We also have with Thank us you. the Thank you. Thank you. We also have with us the founder and editor in chief of Her World India, Ms. Rakhi Bakshi. She is a veteran media professional who has served as media advisor to Lok Sabha Speaker and was also the show host on Rajya Sabha TV. She has covered the Kargil War and the Iraq War. She has worked with many social organizations. Her World India is a brainchild of Ms. Rakhi Bakshi. Her World India strives for an inclusive and gender equal world. It's a space where social and contemporary issues get featured. During the session, I request the attendees to kindly keep themselves on mute and turn off their videos. If anyone has any questions, they're requested to put it in the chat box. All questions will be taken up at the end of the session. Now I'll hand over the stage to Ms. Rakhi Bakshi. Okay, thank you, Maika. And I'm so delighted, so truly delighted to have Priyanka Goswami. I call her the power girl. And when I first saw her walking, I could not stop myself from tweeting saying, this is a cheetah-like walk. And I still maintain that. Of course, she's now our one of the hopes for Olympic. We are looking at her performance. But before I talk to her and about her, let's play a video of hers, which only motivates and inspires us much more. Here is a video. Okay. तो अब मैं बात करूंगी प्रियंका गोस्वामी से और जैसा कि मैं आपको बता रही थी आप सब लोगों को कि ये हर वर्ल्ड इंडिया के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज प्रियंका गोस्वामी हमारे साथ हैं, रेस वॉकर हैं। और जैसा मैंने कहा कि जब वॉक करती हैं तो बहुत लोगों को पछाड़ कर रख देती हैं। हमारे इस हर वर्ल्ड इंडिया कार्यक्रम में तो आपका स्वागत है प्रियंका गोस्वामी। साथ ही मिरांडा हाउस जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज है, उसके पॉलिसी सेंटर जनरल लैब की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने टॉक शो सीरीज में हर वर्ल्ड इंडिया। जैसा बताया गया न सिर्फ महिलाओं के बारे में बल्कि महिलाओं से संबंधित विषय, हमारे समसामयिक विषय, हमारे सामाजिक संदर्भ के विषय, इन सब के बारे में बातचीत करता है और उन विषयों को आगे उठाता है। हमने कोविड-19 पर बहुत सारे विषयों को लेकर उसके बारे में चर्चा की है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते हैं हमारे शो में, लेकिन आज जो आप आई हैं वो हमारे बहुत खास है क्योंकि हम मानते हैं कि आप जैसे लोग पूरे देश को ही नहीं लेकर आगे चलते हैं बल्कि दुनिया में भी इस तरह से अपना नाम कमाते हैं जिसके लिए हम सबका मस्तक आपके सामने झुकता है। सो यू आर आवर हीरोइन प्रियंका गोस्वामी एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू टॉक टू यू टुडे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? जहां तक मैं आपको बताऊं, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और इसकी शुरुआत शायद एक बैग से हुई थी। प्रियंका, आपको लगा कि भाई जो लोग अच्छे खिलाड़ी होते हैं और जीत जाते हैं कंपटीशन में, उनको एक बैग मिल जाता है। क्या ये सच है? हाँ, सच है क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटी भी थी तो काफी इवेंट्स ट्राई किए थे। तो मेरे साथ की जो फ्रेंड्स थी उनको 2-2 बैग 3-3 बैग मिले थे क्योंकि वो लोग रनिंग की प्रैक्टिस कर रही थी पहले से। तो मैं नहीं करती थी तो मैं मतलब दुखी हो गई थोड़ा कि तो कोचेस वगैरह ने भी देखा कि लड़की को एक भी बैग नहीं मिला। इतनी मेहनत की, काफी इवेंट ट्राई किए, एक तो बनता है। तो लास्ट में रेस वॉकिंग बचा था तो उसमें 3 लड़कियां थी। तो
तीनों में फोर्थ में थी मतलब, तो उनमें थर्ड आ गई, तो मुझे एक बैग मिल गया, तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई। तो उस दिन से मेरा इवेंट रेस वॉकिंग हुआ। चलिए, तो एक बैग से प्रियंका गोस्वामी आपके सफर की शुरुआत होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस समय जो खासकर छोटे शहरों गांव में रहती हैं, बहुत टैलेंट उनके अंदर है, लेकिन बहुत बार आगे नहीं आ पाती हैं, लेकिन बहुत सारी आगे भी आती हैं। तो आपका आगे आना प्रियंका उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आपने अपना मुकाम बनाया है आज। हाल ही में हमने आपको देखा कि मन की बात में भी जो प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम है उसमें भी चर्चा हुई आपकी, तो बहुत खुशी होती है कि आप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन ये सफर कैसा रहा? आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए, जब आपने ये सब शुरुआत की थी, तो वो कैसा समय था? पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जितने भी हम प्लेयर्स टोक्यो ओलंपिक्स जा रहे हैं, अब जहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो जैसे मोदी जी ने बोला था कि चीयर्स फॉर इंडिया का एक हैशटैग चला है, तो कि हमें सपोर्ट करे पूरे इंडियंस। तो अब मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं हमारे लिए सपोर्ट किए, प्रे कीजिए, ताकि हम वहाँ पे अपना 100% एफर्ट देके और देश का नाम रोशन करके आए। दूसरा, जो मैंने रेस वॉकिंग जब शुरू की थी, मतलब मैं एक्चुअली गांव में रहती थी, मुजफ्फरनगर में मेरा गांव था। तो उस टाइम पे मम्मी पापा, मतलब गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, अभी तो थोड़ा बहुत हुई है, उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होती थी। तो मम्मी सबसे लड़ाई करके फैमिली को लेके मतलब गांव से शहर में आ गई कि मेरे बच्चों को लाइफ करियर का सवाल है, मुझे इनको यहाँ से लेके जाना है करके। तो मेरी मतलब हम चारों बहन, मम्मी पापा और मैं, मेरा ब्रदर, हम लोग मेरठ आ गए। तो जब मैं 6th क्लास में थी उस टाइम पे, तो मैं काफी एक्टिविटीज में, गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ती थी मैं मेरठ में, तो उसमें हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। जैसा मेरा कुछ भी होता था, दिया कंपटीशन, एवरीथिंग जो भी क्लास में होता था सब में पार्टिसिपेट करती थी। तो एक दिन जिम्नास्टिक वाले सर हमारे कॉलेज में आए कि कोई भी बच्ची गेम में आना चाहती है क्या। तो जैसा मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, उस टाइम मैंने गेम के लिए भी हाथ उठाया कि हाँ सर मुझे ज्वाइन करना है गेम। तो उस टाइम मुझे गेम के बारे में नहीं पता था, बस पार्टिसिपेट करना हर चीज में, उस तरीके से मैंने हाथ उठा दिया। उसके बाद मेरे को उन्होंने स्टेडियम आने के लिए बोला, मैंने काफी दिन जिम्नास्टिक किया, 1-2 साल। उसके बाद मेरा लखनऊ हॉस्टल में सिलेक्शन भी हुआ, केडी सिंह में, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्टल है। तो उसमें हमारा एवरी मंथ फिजिकल ट्रायल होता था। उस टाइम मैं 12-13 साल की थी, तो घर से दूर थी, एक तो पहली बात तो ये तो फिजिकल ट्रायल होता था उस टाइम, रनिंग में मैं फर्स्ट आती थी। तो मेरा मन करता था नहीं यार तू रनिंग में जाना है, जिम्नास्टिक छोड़ना है करके। तो वहां पे मैंने काफी ट्राई किया, फ्रेंड से पूछा, तो बोली तू यहाँ से छोड़ के चली जा, रनिंग यहाँ। फिर मैं मेरठ, फिर मैंने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद मैं 11th में दोबारा ज्वाइन। कोई बात नहीं, बीच में नेटवर्क जाता रहेगा, आप अपनी बात कहती रहिए। लेकिन क्या वो तो फिर मैंने दोबारा 2011 में दोबारा स्टेडियम गई, फिर एक डिसमीट हुई, तो जैसा ये बैग प्राइज में मिला, तब से मेरा रेस वॉकिंग शुरू। जी, तो आपके घर वालों ने क्या कहा आपको कि भाई कुछ और करो प्रियंका, ये क्या खेल कूद में लगी हो, ऐसा सुनने को मिला क्या? नहीं नहीं, मेरी फैमिली से कभी मुझे ऐसा रोक टोक नहीं हुआ है। गांव में बोल देते थे, अभी क्वालिफाई के बाद तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसके पहले बोलते थे लड़की की एज हो गई है, शादी कर दो तो मम्मी मुझे बोलती थी गांव वाले बोलते हैं शादी कर दो, मैं कहा उनका खाती हूँ क्या मैं, जो वो लोग बोलते हैं आप लोग क्यों सुनते हो करके। तो बस इतना कुछ हुआ, और उससे ज्यादा घर पे मम्मी पापा ने कभी कोई किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं किया। बहुत खूब, आपने कहा उनका तो खाती नहीं हूँ, मैं अपने बल पे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। और यही जज्बा है जो मुझे लगता है कि हर्बल इंडिया इसको प्रमोट करना चाहता है, कि हर एक लड़की ये चाहे कि वो अपने पहले पैरों पे खड़ी हो और फिर अपना जीवन साथी भी चुने और फिर अपने अपने आप को हर तरह से आगे बढ़ाए। तो प्रियंका, आप जैसी लड़कियां जो गांव में रहकर भी इतना बड़ा एक मैसेज देती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि बहुत पढ़ाई लिखाई आप करते हैं, शहर में रहते तो ही आगे बढ़ते हैं। आपका आगे बढ़ना इसलिए बहुत ही मायने रखता है उन सारी लड़कियों के लिए जो शायद बहुत सुविधाएं जिनको नहीं मिल पाती हैं, लेकिन वो बहुत सारे बड़े सपने भी देखती हैं और अपने टैलेंट को आगे ले जाती हैं। लेकिन इससे चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि वो किस तरह की मेहनत है प्रियंका
जो आपने की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, मतलब हमें ये बताइए कि कितने घंटे आप देती हैं अपनी प्रैक्टिस को, क्या खाने में विशेष आपका रहा, किस तरह की आपने सैक्रिफाइस त्याग किए कि भाई ये चीज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है? मैंने ये 2-2.5 साल से तो काफी सेक्रीफाइसेस किया है, लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम जिस भी फील्ड में निकल रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे भी कुछ ना कुछ सीख लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि हार्ड वर्क कभी फेल नहीं जाता है, हमें आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं 2011 से जैसे 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में मैंने जूनियर नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो एक जो हाई मतलब एक मेन कंपटीशन होता है उसके लिए मेरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, मतलब 3 साल तक मेरा बेस्ट तो हो रहा था लेकिन एक स्टैंड पे था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यू हार्ड वर्क करती रही। अगर मेरा कोई कंपटीशन खराब भी हुआ है तो भी मैं उससे कुछ ना कुछ सीखा है कि चलो कोई नहीं, अगले में देखेंगे करके। तो लास्ट जो 2 सालों से है, मेरे को फोटोशूट वगैरह बहुत पसंद है, बाहर मतलब रेस्ट वाले दिन घूमने जाना मॉल वगैरह में। तो हमारे कोच ने क्या किया, वो जो रेस्ट वाला दिन होता है हमें ग्राउंड पे आने के लिए बोल दिया, चाहे हम गेम खेले कुछ खेले। तो वो सबसे बड़ा मेरा मिस हुआ है। और दूसरा, मेरे जो साथ में लड्डू गोपाल जी रहते हैं, उन्होंने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है। अच्छा, नहीं नहीं, तो आपको वैसे थोड़ा लाइट भी बना देते हैं कि आपको खाने में क्या ऐसा पसंद था जो आपको लगा कि नहीं अभी मुझे नहीं खाना है क्योंकि मुझे लीन है, मुझे फास्ट वॉक करना है? मतलब मेरे को बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ी है खाने में अभी भी। जैसा संडे को हमारे यहाँ पे पराठे होते हैं मॉर्निंग में, तो मैं कोशिश करती हूँ रूम में कुछ बना के खाऊं, ताकि मैस में जाऊंगी तो पराठा पक्का खा के आऊंगी। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो मैंने छोड़ी है। मेन तो हमारा नॉर्थ इंडियन है, सबसे फेमस जी होता है पराठा, तो सबसे पहले तो मैंने वही छोड़ा है खाने के लिए। जी, तो पराठे का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस प्रियंका आपने किया है, लेकिन थोड़ा आगे की बात ये करते हैं कि आपने जैसे कहा कि अब सभी खिलाड़ी पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत का नाम और आगे रोशन करें विश्व के पटल पर और ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं। तो क्या उम्मीद है, किस तरह के सपने हैं, किस तरह की तैयारी है? देखो, सपने तो जो देश के हैं वो हमारे भी हैं, क्योंकि देश की वजह से ही हम यहाँ तक है, सबकी प्रेयर से, सपोर्ट से। तो हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की, इंडिया की, कि हाँ हमें वहां जाके अच्छा रिजल्ट दे के आना है। तो सभी अपनी अपनी जगह, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स है सबके, तो अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपना बेस्ट ही दे के आएंगे। बस दुआएं चाहिए देश की। कितने घंटे की प्रैक्टिस करती हैं आप प्रियंका? मैं मॉर्निंग 3 आवर या 3:30 आवर्स तक करती हूँ, और इवनिंग 3 आवर, डेली 6-7 आवर्स के बीच मेरा ट्रेनिंग होता है। जी, और आप फिलहाल जैसे आपने अपनी जगह बदली, आप यूपी से फिर बैंगलोर चली गई और वहां अपना पूरी मेहनत से आप काम कर रही हैं, तो क्या आपको कभी लगता है कि क्या शायद मुझ कुछ और भी कर सकती थी, या आपको लगता है कि यही एक चीज है जो आपको हमेशा करनी चाहिए थी और ये यही एक चीज है जिसमें आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहती हैं? देखो, मेरे को फैशन बहुत पसंद है करना। तो मेरा एक सपना भी और है कि मुझे मॉडलिंग भी करना है। तो Please मैं note, सोचती हूँ I am talking to the fashion industry. Note this lady and please give her offers from Herbal India. We're not only cheering for her, but we're also asking the whole modeling fashion industry to please have a look at this heroine और उनको अपनाइए, क्योंकि हाल में मैं आपको बताऊं प्रियंका कि हमारी जो आशा वर्कर्स हैं बहुत अच्छा काम करी हेल्थ की दुनिया में, और वो घर घर जाकर लोगों की मदद करती हैं, उनको बहुत सारी दवाइयां पहुंचाती हैं। तो हाल में एक फैशन मैगजीन ने उनको अपने फ्रंट कवर पे लाया। तो हम समझ पा रहे हैं कि आपकी जैसी हीरोइन असली हीरोइन है एक तरह से, और आप जो है लोग तो एक्ट करते हैं पर्दे पर आप असली दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस देकर लोगों को स्तब्ध कर देती हैं एक तरह से। तो आपको और क्या क्या हॉबीज है आपकी, मतलब क्या आपको समय कभी भी मिलता है? अभी तो आप प्रैक्टिस में लगी हुई है, आपका सारा ध्यान कंसंट्रेशन उसी पर होगा, लेकिन क्या लगता है कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो किस तरह की खुशी मिलेगी आपको देश के लिए? जैसे आपने कहा गौरव की बात तो जरूर होगी और हम सब लोग आपके लिए पूरी प्रार्थना करेंगे, लेकिन किस तरह की एक खुशी होती है एक खिलाड़ी को जब वो अपने मुकाम को और आगे ले जाता है, और ऐसी क्या चीज होती है खिलाड़ी की प्रियंका जो उसे आगे ले जाती है, अगर मैं आपसे टिप्स पूछूं? मैं बोलना चाहूँ कि जैसे सेक्रीफाइसेस है, मैंने बहुत ज्यादा किए हैं।
तो एक बिजी शेड्यूल हो जाता है, फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब हम सोचते हैं कि ये साइड में ये भी करेंगे तो गेम भी होगा, तो ऐसा नहीं है, बस हमें एक गेम पे फोकस रखना पड़ेगा। साइड की हर चीज, मतलब प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, डाइट भी चाहिए और वर्कआउट भी चाहिए। और अगर ये टाइम से चलेंगे तो हमें रेस्ट की भी जरूरत खुद ही पड़ेगी। अगर हम वो रेस्ट नहीं करेंगे तो वहां हमारी रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी तो नेक्स्ट वर्कआउट के थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक तो चीज मेन और है है, कि हालांकि फोकस के साथ अपना, जी जी बताइए बताइए। बस यही है मेन की फोकस सबसे बड़ा है कि फोकस सही फोकस रखना चाहिए, रखना। जैसे कहा जाता है अर्जुन की आंख, तो फोकस को सही रखना चाहिए। प्रियंका जी आप बता रही हैं, हालांकि सबको समान अवसर मिलते हैं, सब लोग आगे जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इस बार कि हमने महिला खिलाड़ियों पर भी पूरी नजर रखी हुई है कि महिला खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे। हमने दीपिका को देखा और बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि महिलाएं को कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां जरूर होती हैं, और उनको अगर पार करके वो आगे बढ़ती हैं तो ये और ज्यादा खुशी की बात होती है। तो आप क्या कहेंगी, क्या आप ये सोचती हैं प्रियंका कि महिला खिलाड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप कहती हैं कि नहीं महिला खिलाड़ी हूं तो और बेहतर करूं? नहीं, प्रियंका। देखो फर्क तो पड़ता है, लेडीज लेडीज होती है बोलने के लिए, हाँ नारी शक्ति मतलब है कि हाँ हर जगह, लेकिन बहुत सी चीजें हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में ऐसी होती है कि हमें फेस करनी पड़ती है, वो जेंट्स को नहीं करनी पड़ती है। तो गेम में भी हम लोग का जैसा लॉन्ग इवेंट है तो काफी प्रॉब्लम्स हमारी गर्ल्स की होती है, तो उसमें भी फेस करनी पड़ती है, वो लड़के फेस नहीं करते हैं। तो है कहीं ना कहीं, मतलब एक ये लगा लो कि हमें उसका माइनस पॉइंट है, तो फिर भी हम लोग उसको फेस करके, तो लड़कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं लड़की को मानती हूँ, क्योंकि उतना फेस करके भी वो इतना अच्छा रिजल्ट देती है, किसी भी चीज में हो तो फेस तो करना पड़ता है हर चीज। मतलब मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। बहुत सारी समस्याएं जो सिर्फ महिलाओं को ज्यादा होती हैं, कई बार जिस तरह की हेल्थ से रिलेटेड, हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड है, वो समस्याएं होती हैं। आपका भाव यही है, और आप लेकिन यही कह रही है कि वो ज्यादा कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी अंदरूनी हिम्मत होती है। प्रियंका, क्या आप मानेंगे कि महिलाओं के अंदर खासकर बहुत कोशिश कर रही है हमारे देश में महिलाएं हर तरफ आगे आने में, खेल की दुनिया में भी, और बहुत सारी चुनौतियां जैसे कि आप कह रही हैं, बहुत सारी चुनौतियां समझ में आती हैं, कई बार नहीं भी आती हैं, लेकिन फिर भी आप जैसी महिला खिलाड़ी आगे बढ़कर और उस चुनौती को हरा कर एक एक तरह का संदेश देती हैं कि हार नहीं मानना है। सही बात है, मैं भी सभी गर्ल्स को सैल्यूट करूंगी, चाहे वो गेम में हो किसी में भी हो, क्योंकि गर्ल्स तो प्रॉब्लम्स तो सभी को होती है। तो मैं एक बताती हूँ, जैसा हमारा सैटरडे जो है हैवी वर्कआउट होता है, लॉन्ग वर्कआउट होता है, तो मेरे को मंथली पीरियड्स वगैरह भी होते हैं, तो उसको लेके मतलब मुझे जब मेरे को डेट आने वाली होती है तो मैं भगवान को प्रे करती हूँ, भगवान जी प्लीज मेरा सैटरडे निकल जाने देना। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब तो करती है, तो इन सब को भी बहुत फेस करना पड़ता है हमें। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये अब हम सब के अंदर न सिर्फ एक हौसला भी बढ़ा है महिलाओं का ये सब होने के बावजूद, बल्कि मुझे लगता है कि चारों तरफ से प्रियंका, क्योंकि बहुत सालों से हम भी देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा समाज भी समझने लगा है कि महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा, और खेल में भी कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता कि पुरुष ज्यादा आगे आएंगे, लेकिन महिला भी पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, नहीं प्रियंका? जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सच में हम लोग मतलब इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी हम लोग उनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और क्या आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगी प्रियंका की, जिस तरह से रेस वॉक होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये क्या ऐसी अनूठी विधा है खेल की। लोग सोचते हैं कि एक मैराथन रनर होता है, एक एथलीट होता है, एक तीरंदाज होता है, तरह तरह के खेल। आप थोड़ा सा और बताइए अपने खेल के बारे में। हाँ, मैं भी, ये बात तो मेरे मन में भी थी कि रेस वॉकिंग के बारे में इंडिया में ज्यादा नहीं पता है, तो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो कमेंट्स आते हैं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं तो ये भाग रहे हैं, नहीं ये चल रहे हैं, ये क्या चीज है। ऐसे काफी कमेंट्स आते हैं। तो रेस वॉकिंग देखो मुझे भी नहीं पता था जब मैंने शुरू की, तो एक वही है, अगर मैं ओलंपिक्स में अच्छा करूंगी तो ऑब्वियसली पूरे इंडिया में पता चलेगा कि हाँ रेस वॉकिंग की कोई लड़की है। अभी मोदी जी ने बोला तो थोड़ा बहुत लोगों को उस टाइम पता चला होगा कि हाँ ये भी कोई इवेंट है करके। हाँ, तो आपको कितनी खुशी हुई जब प्रधानमंत्री ने आपका नाम लिया प्रियंका? हाँ, वो मेरे को सरप्राइज मिला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो मेरा नाम लेने वाला है, क्योंकि ओलंपिक्स तो हम लोग बहुत ज्यादा जाने वाले हैं, उन्होंने
कुछ ही एथलीट्स का नाम ले पाए थे वो। तो अच्छा लगा, बहुत सरप्राइज था मुझे। तो मीडिया वालों के फोन आने लग गए थे कि तुम्हारा मन की बात में नाम दिया, तो मैंने उठ के तुरंत वीडियो देखी कि हाँ मेरा ऐसा हुआ है। जी तो हाँ, बहुत और अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपको। और इसके अलावा मैं ट्विटर पे सबसे पहले मैंने ये भी देखा, खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी आपकी तारीफ की, आपके बारे में बात की है। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रियंका कि आपको इतना हौसला मिल रहा है, और आपके जैसे खेल को, रेस वॉकिंग को एक तरह से हम इतना ज्यादा समझ भी पा रहे हैं। मैं अपने लिए भी कहूंगी, शायद मेरी टीम के लिए, कि हम शायद इतना नहीं जानते थे, लेकिन आपसे बातचीत करके, आपके खेल को देखकर और आपकी प्रतिस्पर्धा की जो एक टैलेंट है उसको देखकर हम बहुत ज्यादा प्रेरित खुद हो रहे हैं। और मैं आज फिर से एक बार यहाँ ये कहना चाहूंगी कि हर्बल इंडिया की पूरी टीम और मैं इस पूरे खेल में आपको जितना हम सपोर्ट कर पाएंगे, जिस संभव कर पाएंगे, हम जरूर करेंगे। और हम आपके लिए पूरा चेयर करेंगे कि आप ओलंपिक में भी अपना प्रदर्शन अच्छा रखें। तो हम ये जरूर पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप घर वालों से बातचीत हो पाती है कभी? उनसे आप बातचीत करती हैं फोन पर, या मिलना तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या उनसे बातचीत होती है? तो क्या बातचीत होती है? मतलब घर पे मैं इतनी बात नहीं कर पाती हूँ अभी। जैसा कल परसों 2 दिन तो बहुत बिजी था ये, मतलब पूरे मीडिया वगैरह पापा जी मम्मी सब बिजी थे। मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं लंच के बाद कोशिश करती हूँ 5-10 मिनट वीडियो कॉल करके उनसे बात कर लेती हूँ। अभी भी मम्मी का फोन था, वो ना थोड़ी देर बाद करती हूँ। तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जी, जब थोड़ा बहुत टाइम आप। रिलेटिव जी रिलेटिव्स रह जाते हैं, बोलते हैं लड़की फोन नहीं करती है ये वो, तो मैं कहा, करूंगी मैं करूंगी, कल कल बोल के भूल जाती हूँ, फिर नहीं कर पाती, बिजी इतना रहती हूँ। अच्छा, अक्सर हमने देखा है प्रियंका कि हम फिल्मों में बहुत बार देखते हैं कि दिखाया जाता है खेलों के बारे में और खिलाड़ियों के बारे में। तो आपका कुछ पसंदीदा ऐसी कोई फिल्म है जो खेल के बारे में है, या कोई आपको ऐसा पसंदीदा आपकी कोई फिल्म अदरवाइज भी, या कोई ऐसा आपका अभिनेता अभिनेत्री जिसको आप बहुत इंस्पायर, जो आपको करता है कि मैं अच्छा प्रदर्शन भी करूं और अच्छा आगे बढ़ूं? देखो अभी जैसे मूवी पंगा मूवी आई थी, तो एक लेडीज के ऊपर थी कि उन्होंने कैसे कमबैक किया गेम में। तो उससे बहुत मोटिवेशन मिला कि हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि आगे जाके हमें लाइफ तो सबको देखी, सब चीजें लड़की को निकालना होता। तो और वही आपकी। है कि मेरे को उससे सीख मिली कि मैं कर सकती हूँ। जी, और आपको कौन से खिलाड़ी भी हैं? जैसे कि दो चीज यहाँ पर है, एक तो कि कोच जो आपका होता है, जिस तरह की ट्रेनिंग आपकी होती है, वो ट्रेनिंग और कोचिंग, प्रियंका, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? और दूसरा कि कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं? मेरे कोच है गुरमीत सिंह है, वो खुद डबल ओलंपिक खेल चुके और एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो उसको कुछ वो बहुत सिखाते हैं। उन्होंने मेरी 9-10 मिनट बेस्ट कराई है। तो एथलीट्स तो यही है कि मैं खुद से ये नहीं कि किसी को मैं रोल मॉडल मान के उनको फॉलो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो मेरे में कमियां हैं उनको ढूंढती हूँ और उनको सुधारने की कोशिश। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पर की हैं कि अपने ऊपर आप ध्यान देती हैं प्रियंका, और आप कहती हैं कि जो मेरे अंदर फ्लॉज हैं उसके ऊपर काम करती हूँ, और फिर उसके ऊपर काम करके ही अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहती हैं? बहुत सारी लड़कियां जो उनको कहा जाता है कि खेल कूद कर क्या करोगी, तो कुछ और कर लो। तो आप, बहुत सारी लड़कियां जो इस समय आपको सुन रही हैं प्रियंका, और जो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने लिखा था कि इट्स अ फैन गर्ल मोमेंट फॉर मी दैट आई एम टॉकिंग टू प्रियंका। तो तो बहुत सारी लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश है कि क्या चीज वो करें या क्या चीज ना करें, या क्या चीज के ऊपर ध्यान दें जिससे वो आगे बढ़े? बस यही है कि जिस चीज में भी है, मतलब हर फील्ड में, यही नहीं बोलती मैं कि गेम में ही, जिस फील्ड में भी है वो उसको फोकस के साथ वर्क करे। ये ना सोचे कि हम साइड में ये वर्क भी करके इस पे, अगर एक टारगेट है उनका कि हाँ तुम्हें इस चीज में आगे निकलना है, तो उसी के लिए फोकस रखो, उसी में आगे बढ़ो और मेहनत करते रहो। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मैंने जैसे पहले भी बोला था, बस हार्ड वर्क हमेशा मिलेगा। तो उसके लिए फोकस रख के हार्ड वर्क करते रहे।
तो कई बार ये कहा जाता है, सब, और आपने पेरेंट्स, मम्मी, जी बताइए। पेरेंट्स सपोर्ट सबसे पहले जरूरी है किसी के लिए भी। तो मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगी कि कोई भी बेटा हो या देश के लिए ओलंपिक खेलने जा रही हो, ऐसे वो भी अपने देश के लिए बाहर जाए, या कुछ भी जिस फील्ड में भी वो लोग हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। और आपको और एक चीज क्या लगती है कि खेलकूद को हमारे देश में अब बहुत बढ़ावा मिल रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमारे खेल मंत्री भी किस तरह से हमेशा रुचि दिखाते हैं और किस तरह से उत्साह सबका बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम सब लोग इस समय बहुत उत्साह से भरे हुए हैं कि कैसे हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करे। हमारे देश में आपको क्या लगता है और खेलकूद की दुनिया में क्या होना चाहिए? देखो, जब से किरण रिजिजू सर आए हैं तब से एक अलग ही स्पोर्ट्स का वो हो गया कि कोई भी प्लेयर्स को अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो वो 1 सेकंड में सोल्व हो जाती है। तो बहुत सपोर्ट है किरण रिजिजू सर से हम लोग को। तो जैसा वो आते हैं पर्सनली हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं, जैसा एक मिनिस्टर होके मतलब हम लोग के साथ खाना खाते हैं, तो एक अच्छा लगता है कि हाँ, पहली बार मेरे को ऐसा कोई मिनिस्टर मतलब मैंने देखे हैं कि हाँ, मतलब इनके प्लेयर्स के साथ इतना मतलब डायरेक्टली बीच में पूछते मिल हैं रहे कि हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हाँ, तो मतलब बहुत सपोर्टिव है वो। बहुत बढ़िया बात है कि ये भी आपने अच्छी बात कही है कि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि जब आपके ऊपर ऐसे लोग बैठे हों जो आपको न सिर्फ अपनी ऊपर से आपको देखें, बल्कि आपके बीच जाकर आपका हौसला बढ़ाएं। और ऐसे ही खेल मंत्री आपके बीच आकर, अभी भी आज उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो खाना खाने के बारे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से फूल प्रूफ किया जा रहा है कि खाना अच्छे ढंग का हो। तो ये सब बातें जो है बहुत मायने रखती हैं। और जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है प्रियंका, कई बार ये बात सामने आ जाती है कि क्या पूरी सुविधा मिल रही है कि नहीं। तो आपको लगता है कि सुविधा सही मिल रही है आपको? बिल्कुल जी, अभी तो बिल्कुल हर चीज मिल रही है। जैसे ओलंपिक्स के एथलीट्स हैं यहाँ पे, हॉकी टीम है, और हम एथलीट वॉकिंग के हैं यहाँ पे। तो मतलब हमें एक जैसा रखते हैं ना फूल को उठा के कि कुछ भी इनको होना नहीं चाहिए, तो ऐसे हमें बिल्कुल सेफ्टी के साथ इधर रखा हुआ है। कोरोना चल रहा है बाहर तो काफी सेफ्टी है। खाने के लिए 24 घंटे हमारे लिए मैस खुली हुई है कि जब भी मन करे, जो मन करे तुम यहाँ पे बनवा के खाओ। तो बहुत सपोर्ट है इस टाइम पे। और जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि कोरोना के टाइम में आपने जिस तरह से अपने खेल को आगे बढ़ाया, और कोरोना जैसा एक चैलेंजिंग समय हम सबके साथ सामने आया प्रियंका, तो आप क्या कहेंगी कि एक तो कोरोना के लिए भी आप मैसेज दे सकती है लोगों को, और दूसरा कि इतने कठिन समय में एक खेल में न सिर्फ एक खिलाड़ी होना, बल्कि उस खेल को मांझना, उस खेल के में बेहतर प्रदर्शन करना, और उस खेल को अपने देश के से ले जाकर दुनिया तक में पहुंचाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखो, चुनौती तो थी मेरे लिए बड़ी, क्योंकि मैं पिछले साल 36 सेकंड से मेरा क्वालिफाई मिस हुआ था। जस्ट 36 सेकंड, जो कि हम टर्निंग में कवर कर सकते हैं 20 राउंड में। तो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि हाँ, नहीं, अच्छा करना है और हार्ड वर्क करना है जाके। तो कोरोना ने वो पूरा वेस्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया साल। तो कोरोना की वजह से हम लोग काफी डिस्टर्ब तो हुए हैं, और उससे भी फिर भी कुछ ना कुछ सीख लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हम क्या, बहुत सी चीजें हमने इस कोरोना की वजह से सीखी है कि हमें कैसे लाइफ में रहना चाहिए। अकेले रहना सीख लिया, और रूम में क्या मतलब कहीं बाहर बूट जाए बिना, बाहर का खाना खाए बिना भी हम लोग रह सकते हैं। तो काफी चीजें सीखने को मिली। तो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं, कोरोना भी कभी ना कभी जाएगा। बहुत बढ़िया कहा आपने, ये चला जाएगा लेकिन हमें बहुत सीख देकर जाएगा, ये बात आपने कही। और वैक्सीनेशन के बारे में मैं चाहूंगी कि आप लोगों को भी अपील करें, क्योंकि हम सब हर जगह ये बोल रहे हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ये उनके लिए अच्छी बात है, खासकर कोरोना के डर को भगाने के लिए और कोरोना की बीमारी को भगाने के लिए। तो आप भी इस बारे में बता सकती हैं लोगों को। जी बिल्कुल, वैक्सीन तो लगवानी ही चाहिए, क्योंकि जब मैंने वैक्सीन लगवाई थी, फर्स्ट डोज मुझे लगी थी, तो मेरे को लोगों ने बहुत डराया था कि रात को फीवर आएगा, 3 बजे के बाद आएगा, 4 बजे के बाद। तो मैं पूरी रात बस यही वेट करती रही कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। तो ये तो बहुत लोगों के अंदर शायद ये डर होगा कि हमें फीवर आ जाएगा, ये तो इतना कुछ नहीं होगा। नॉर्मल थोड़ा बहुत जो भारीपन होता है वो उतना ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए सब लोग वैक्सीन लगवाए और अपना सुरक्षित रहेगा। बहुत अच्छा आपने बोला
क्या फर्क आपको कभी लगा? ये थोड़ा सा मैं आपके और अंदर झांकने की कोशिश कर रही हूँ प्रियंका, कि जो एक लड़की गांव या छोटे शहर से आती है और फिर वो बड़ी पूरी देश में अपना नाम करना चाहती है, किसी भी सेक्टर में हो, खासकर खेलकूद की दुनिया में हमने देखा है कुछ राज्यों में, जैसे कि हरियाणा में भी हमने देखा किस तरह से लड़कियां आगे करें कुश्ती जैसे खेलों में, उस तरह से आप रेस वॉकिंग में उत्तर प्रदेश से आती हैं, आप वहां से आपने नाम रोशन किया है। तो क्या कहेंगी आपको कि कितनी चुनौतियों के बावजूद जो गांव की लड़कियां होती हैं या फिर जो शहर होता है, उसमें क्या फर्क महसूस किया? कि आपको कभी ऐसा लगा कि क्या पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं, और फिर भी आपने अपने आप को उठाया? देखो, गांव की लड़कियां, अभी मेरे गांव में भी लड़कियां हैं, उन लोग को इतना फैसिलिटी नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है, पता भी नहीं है खेल के बारे में। तो काफी चीजें हैं लड़कियों गांव में फेस करनी पड़ती है, तो उनको ग्राउंड मिल जाए और काफी, मतलब ठीक उनको है। उनको अच्छे कोचेस मिले, परिवार का सहारा मिले, आप भी यही मानती हैं कि इस तरह से वो आगे बढ़ पाएंगे, उनको सहूलियत मिले गांव में? हमारा मानना है, अगर हम खेल की दुनिया में देखें, कि अभी बहुत कोशिश हो रही है, नए नए स्टेडियम्स भी बन रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा खेल की सुविधाएं बढ़ेंगी, जितना ज्यादा स्कूल कॉलेज में खेल कूद को तवज्जो दी जाएगी, उतना ज्यादा हम और अपने देश की पूरी खेल कूद का जो माहौल है वो बना पाएंगे। और उसके अलावा प्रशिक्षण हमारा कैसा हो, ट्रेनिंग हमारी कैसी हो, उस पर ध्यान दिया जाए। और बेहतर सुविधाएं हर तरह से, जैसे कि आप कह रही थी अभी, चाहे वो आपके कपड़े होते हैं, तरह तरह की सामान जो आपको चाहिए होता है, गियर्स चाहिए होते हैं, शूज, जैसे कि आप जब वॉक करती हैं आपके शूज प्रियंका, तो इस सब चीजों पे भी और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है प्रियंका। देखो, शूज तो हमारे हैं, हम इंडिया में भी नहीं अवेलेबल होते हैं, तो हमें बाहर से शूज मंगाने होते हैं। तो शूज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि रेस वॉकिंग के अच्छा। शूज इंडिया में नहीं मिलते हैं करके। तो काफी कॉस्टली शूज आते हैं, लेकिन जब हमने गेम शुरू किया तब इतना नहीं पता था शूज वगैरह के बारे में, तो जो उससे भी मिला कोशिश था की। उसमें हमने किया है। तो वही है, जो मेहनत करने वाला होगा उसको चाहे थोड़ी बहुत भी फैसिलिटी मिले, वो करके निकल ही जाएगा। मैंने जब शुरू किया था मुझे भी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जो अब मुझे आके मिल रही है, तो मैं सब चीज फेस करके यहाँ तक पहुंची। मैंने भी, मतलब देखो, फाइनेंशियली तो कोई भी प्लेयर, ऑलमोस्ट जितने भी प्लेयर होते हैं सब फेस करके ही आगे बढ़ते हैं। तो मैंने भी काफी फेस की, हर एक को फेस करनी पड़ती है, तो उससे भी कुछ ना कुछ सीख लेके आगे ही बढ़ना बढ़ना है। चाहिए। एक चीज और प्रियंका, कि आपने कहीं पे, मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, तो ये भी कहा कि कई बार जब आप करती हैं रेस वॉक, तो अकेले चलना है, जैसे 20 किलोमीटर का जो आपने रिकॉर्ड बनाया, तो अकेले चलते जाना है। तो क्या आपके मन में उस समय चल रहा होता है जब आप बिल्कुल अपनी नजर को साध के और अपने पैरों को साध के चलती होती हैं, तो क्या हो रहा होता है आपके मन के अंदर? देखो, 20 किलोमीटर है, 1.5 घंटा है, उसके बीच में बहुत सी चीजें आती हैं। ओलंपिक क्वालिफाई होने से पहले भी ओलंपिक पहुंच जाते हैं करते करते, तो काफी चीजें माइंड में आती है, लेकिन हमें उसको हटा के फिर अपने टाइमिंग पे, किलोमीटर पे फोकस करना होता है, ताकि हम, क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं तो अपने आप स्लो पड़ जाता है, तो हमें वो हटा के, इधर उधर माइंड हटा, एक फोकस मतलब रखना हटा के, पड़ता तो एक फोकस रखता है अपने टाइम। है। जी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप कह रही हैं कि एक तो ये वॉक है, ये रनिंग नहीं है जो जल्दी नहीं पास हो रहा है, इसमें एक टाइम लग रहा है, जैसे आपने कहा 1.5 घंटा, और उस 1.5 घंटे में अपने अपने आप को साधे रखना, और अपने पैरों की जो चाल है उसको, जो जो कि मैं हमेशा चीता चाल आपकी चाल को बोलती हूँ, वो बनाए रखना, ये एक बहुत बहुत बड़ा मुकाम है प्रियंका, जो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से तय किया है। और मुझे लगता है पर्सनली, मैं बहुत ज्यादा खुद स्पोर्ट्स में आगे नहीं रही हूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन मुझे जब भी आप जैसे लोगों से मैं बात करती हूँ, सीखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जैसा कि आपने कहा, मॉडलिंग की अगर आपको बाद में कभी, अभी तो सफर लंबा है, लेकिन कभी मिला, तो क्या आपकी ख्वाहिशें हैं? किस तरह का रहेगा वो आपका अनुभव? बस यही है कि एक वो उधर की लाइफ भी देखनी है कि कैसी लाइफ होती है। टीवी वगैरह में ही देखी है अभी तक, रियल में नहीं पता है कैसी होती है, तो बस एक एक थोड़े टाइम के लिए सही, पर करना है। नहीं, मैं आज आपको यहाँ पे जरूर इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूंगी
कि आपको आपके प्रदर्शन में भी आप अच्छा काम करें, भारत का नाम रोशन करें आप ओलंपिक में, ये तो हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप हमें नजर आए उस दुनिया में भी जिसकी आपकी ख्वाहिश है। प्रियंका, और कोई ख्वाहिश, कोई सपना जिसके बाद हम एंड करेंगे एक संदेश के साथ? प्रियंका, बस यही सपना है कि मैं ओलंपिक मेडल लेके आऊंगी। वाह, और हम पूरी कोशिश प्रार्थना आपके लिए करेंगे कि आप ये मेडल जरूर लेकर आए। और पूरा भारत देश आज को आप पे गर्व है कि आपने जिस तरह का अभी तक भी सफर तय किया है, और हम सभी महिलाएं और लड़कियां भी आपको अपनी प्रेरणा मानती हैं, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। प्रियंका, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। Ladies and gentlemen, you can watch this whole conversation on YouTube link, which will be providing you. And we are proud to present to you on Her World India Talk Show series, Priyanka Goswami. We are pinning our hopes on her that she performs not only better, but also brings home laurels for us as far as Olympics is concerned. And we all wish her all the very best. I thank my team, Her World India team, which has really been tirelessly working on all these shows that we are bringing to you. Do watch us, do subscribe to us, and do encourage and support us so that we bring you more such heroines and heroes also on our show further. So thanks for watching us this evening, and continue to watch us on all social media handles. We are on Twitter, we are on LinkedIn, we are on Instagram, and of course on YouTube as well, and Facebook. Thank you this evening. प्रियंका जी, एक बार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और प्रे कीजिए हम सारे इंडियंस अच्छा करके आए टोक्यो ओलंपिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय।